हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक A.B. पोमने आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। द फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कैटेगरी ए प्राइमरी फंक्शंस, बी सेकेंडरी फंक्शंस एंड सी contingent functions. Now first let us see the part of primary functions of money. Primary functions means main or major functions of money. It consists of two functions, that is medium of exchange and measure of value. So first let us discuss the first primary function of money, that is medium of exchange यानी विनिमय माध्यम. The most important function of money is to serve as a medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold for money. Student, आज पैसे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना जाता है? तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय माध्यम. आज हर इकोनॉमी के अंदर पैसा विनिमय माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एक कार्य पैसा बहुत ही अच्छी तरह से निभाता हुआ दिखाई देता है. आज पैसे के द्वारा किसी भी वस्तु को खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, क्योंकि मनी possesses general purchasing power, and with the help of this power we can purchase or sell any commodity or service. This function of money has solved one of the biggest problem of the barter system, that is lack of double coincidence of wants. Some unique features of money like general acceptability, portability, durability, etc. have helped money to work as a medium of exchange. ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं सेकेंड प्राइमरी फंक्शन के बारे में, और वो है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मूल्य मापक या हिसाब का परिमाण. प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस expressed in terms of money. Means today the value of all goods and services is expressed in terms of money. So money is a unit of account at present, and when the value of a commodity is expressed in terms of money, it is called price. यानी जब वस्तु का या सेवा का मूल्य पैसे में व्यक्त किया जाता है तो उसे कीमत कहा जाता है. किसे कहा जाता है कीमत? जब वस्तु का या सेवा का मूल्य पैसे में या मनी में व्यक्त किया जाता है तो उसे कीमत कहा जाता है. आज सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य
मनी फॉर्म में स्पष्ट किया जाता है। इसलिए पैसे को आज यूनिट ऑफ अकाउंट यानी हिसाब का परिमाण कहा जाता है। मनी enables to compare the prices of commodities. By comparing the price of different commodities, relative values of these commodities can be calculated. यानी आज मनी के कारण हम वस्तुओं के कीमत की तुलना कर सकते हैं और इस कंपैरिजन के आधार पर वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य यानी रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ए टेबल इज़ 2000 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ 500 rupees. Then it indicates that the value of a table is equivalent to the value of 4 chairs. Student, you know very well, goods and services are quantified in different units. For example, sugar in kilograms, milk in liter, cloth in meter, etc. In the absence of money, it was very difficult to express the value of a kilogram of sugar in terms of certain liter of milk or certain meters of cloth. This difficulty is overcome when the prices of all these goods are expressed in terms of money, which is a unit of account. Today, different currencies are used to express the value of commodity in different countries. For example, rupee in India, dollar in USA, pound in UK, yen in Japan, etc. Income and expenditures of all kinds, assets and liabilities are stated in terms of money as a unit of account. आज सभी कंट्रीज़ के अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स और लाइबिलिटीज़ इनको पैसे के रूप में ही स्पष्ट किया जाता है जो हिसाब का परिमाण है। ओके गाइस, हियर द पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी इज़ ओवर। अब चलो डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। Along with primary functions, money performs 3 secondary functions, that is, standard of deferred payments, store of value, and transfer of value. Okay guys, now first let us discuss the first secondary function of money, that is स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स यानी विलंबित भुगतान का मानक या विलंबित भुगतान का साधन। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट्स और इसका आंसर है पेमेंट्स टू बी मेड एट ए फ्यूचर डेट इज कॉल्ड deferred payments. Once again, I repeat the definition. Payments to be made at a future date is called deferred payments. यानी भविष्य में जो भुगतान किया जाता है उसे विलंबित भुगतान कहा जाता है। किसे कहा जाता है विलंबित भुगतान?
भविष्य में जो भुगतान किया जाता है उसे विलंबित भुगतान कहा जाता है। इन द मॉडर्न इकोनॉमी many transactions take place without instant payments. The debtors make a promise to make payments on some future date. Such future payments are possible only because of money. But under barter system, taking loans was easy, but its repayment was difficult because loan was in the form of grains, cattle, etc. But at present, money has overcome this difficulty by serving as a standard measure of payment. Over a time, money makes borrowing and lending easy. स्टूडेंट, बार्टर सिस्टम के अंदर अनाज, पशु इनके रूप में लोन की लेन देन होती थी। इनके रूप में लोन लेना आसान था, लेकिन भविष्य में उसका भुगतान करना बहुत ही कठिन काम था। लेकिन इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने का काम आज पैसे ने किया है, क्योंकि आज लोन की लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। पैसे के कारण आज लोन लेना और लोन देना आसान बन गया है। तो इस प्रकार पैसा विलंबित भुगतान का कार्य भी अच्छी तरह से करता है। ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में, और वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का संचयन या मूल्य का संग्रह। मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज मनी हैज़ परचेसिंग पावर, यानी पैसे के अंदर परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति होने के कारण पैसा मूल्य संचयन का कार्य करता है, और अन्य चीज़ों की तुलना में पैसे के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण मनी वर्क्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू इफेक्टिवली। Money not only satisfies wants in the present but also makes provision for satisfaction of wants in future. This is possible due to savings, and money is a convenient means through which savings can be done easily. According to Lord J.M. Keynes, money is a link between the present and future. स्टूडेंट, मनी के अंदर परचेसिंग पावर होने के कारण पैसा वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ भविष्यकाल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लॉर्ड केन्स पैसे को वर्तमान काल और भविष्य काल इनके बीच की कड़ी या दुआ मानता है, यानी पैसा दोनों काल को आपस में जोड़ने का काम करता है, ऐसा केन्स का मानना है, और ये पूर्ण रूप से सही भी है। ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं आखिरी सेकेंडरी फंक्शन के बारे में, और वो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का स्थानांतरण। टुडे ट्रेड ऑफ ए कंट्री एक्सटेंड्स अमंग डिफरेंट कंट्रीज and organizations because of
globalization. Due to this, it becomes necessary to transfer purchasing power from one place to another. This work is easily done by money. Means money enables transfer of value from one person to another and from one place to another. Real assets like building, plot, shop, agricultural land, etc. can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. स्टूडेंट, जब पैसा अवेलेबल नहीं था उस ज़माने में बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चरल लैंड इन जैसे वास्तव संपत्ति का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र असंभव था, इम्पॉसिबल था। लेकिन आज इस असंभव कार्य पैसे के कारण संभव हुआ है, क्योंकि आज हम एक जगह की रियल असेट बेचकर दूसरी जगह उन पैसे के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार पैसे के कारण आज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास और एक जगह से दूसरे जगह मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का स्थानांतरण आसान बन गया है। ओके स्टूडेंट, हियर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी फंक्शंस इज ओवर। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मनी के दो प्रकार के कार्य देखे, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। द पार्ट ऑफ contingent functions of money will be discussed into the next video. Thank you and have a nice day.